I'll wait for 2 minutes. तब तक क्वेश्चन लिखते हैं. उसमें करेक्शन है. एक्सरसाइज 5.4 लास्ट क्लास वी डिड 11, 12, 13 सम डिस्टेंस के रिलेटेड. तो 15th भी नाइस सम इट इज, बट एक करेक्शन है. प्रिंट एरर. सी अगर तुम्हारा कौन सा टेक्स्ट बुक है उसमें करेक्शन हुआ है या नहीं. Find the points on line x plus y minus 4 equal to 0, which are at 1 unit distance from line. The line which is given is wrong, so it is this 4x plus 3y equal to 10. Please make this correction if not there in your textbook. ये equation होना चाहिए. वो पूरा print error है. Find the points on the line x plus y minus 4 equal to 0, which are at a unit distance from 4x plus 3y equal to 10. So this is misprint. If then do the correction. Chalo, it's 11:50. I will start. Students, find the points on this line which are at a 1 unit distance from this line. अगर distance दिया है definitely हम वो distance formula use करेंगे, but सबसे पहले लिखो let p sum a comma b be the point on this line, on line x plus y minus 4 equal to 0. अगर वो line, if you want to find a point on this line, that means it will satisfy that equation. So we have a plus b minus 4 equal to 0. ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन कर सकते हैं, या इसको a plus b equal to 4, क्योंकि we need simultaneously. So keep it aside. Now point AB, point P is at 1 unit distance from which line? This line. 4x plus 3y equal to 10. So that means distance formula क्या है? We write this and we substitute this point PAB. So ये कैसा दिखेगा? 4a plus 3b minus 10 whole divided by square root of a square plus b square. मतलब x और y का coefficient. So 16 plus 9. This is not 0, sorry, this is 1. The distance given is 1. I repeat, student, we are taking a point on this line which we need it. So since it lies on this, it will satisfy this equation. So we are substituting x instead of x and y. We will substitute a and b here. Also, one more condition is given, that point is at 1 unit distance from this. So this is the distance formula and this distance is given. So therefore points are unknown. तो ये कितना होता है 25. तो 4a plus 3b minus 10. जब हम mod open करते हैं, ये तो 5 हो गया और ये plus or minus 1 होगा. You know that mod x equal to something है, unknown है, so it can be plus or minus 1. Hence we get two equations. 4 plus 3b minus 10 equal to 5, or 4a plus 3b minus 10 equal to minus 5. So 2 or 3 equations and solve that simultaneously now. 4a plus 3b ये क्या होगा 550. तो इसको मैं सेकेंड कर देती हूँ. और 4a plus 3b minus 5 plus 10, तो plus 5. इसको 3 कर देती हूँ. So you have to solve 1 and 2 to get 1 point and 1 and 3 to get another point. Hence do the solving part and tell me the points. Yes, Varun, absolutely right. Your points are. Let others also finish. I'll wait. Solve simultaneously equation 1, equation 2. इससे तुम्हें एक पॉइंट मिलेगा. Equation 1 and equation 3. See students, the way I have written step, exam में तुम्हें shortcut trick कुछ नहीं, मतलब no shortcut allowed. At least minimum ये सब लिखना है. You have to explain that what you are trying to say and how you are doing. You have to explain us.
बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं और बहुत कम भी नहीं लिखना है. So this question can be asked for 3 or 4 marks. So the writing part in should be in the similar way. Equations को मार्क करो, फिर अभी लिखोगे solving equation 1 and 2, फिर वो पॉइंट मिल जाएगा. Solving equation 1 and 3 और पॉइंट मिल जाएगा. You should join on time. पेज नंबर पहले मैं बता देती हूँ. 5.4 पेज 122. टेक्स्ट बुक खोलो. एक्सरसाइज 5.4 sum number 15 I am doing. I am explaining again. You have to find the points. Can you see ये plural है? जब भी तुम्हें इस क्वेश्चन में प्लूरल कुछ दिखे, जैसे उस केस में इक्वेशंस थे, डेफिनेटली 2 पॉइंट्स आएंगे, ऐसे सोच लेना. So find the points on this line. So you will say let P A comma B on this line. We don't know, the point is unknown. So we are taking any unknown point. Since it lies on this line, we get one equation by substituting. Also, you have one more condition with this point. This point is at 1 unit distance from this equation. So ये जो equation है, तो distance formula लगेगा. You have a distance. You know what is distance formula? Last class we did. It is ax plus by plus c, और वो point है, वो इसमें substitute करना होता है. Whole divide by a square plus b square. So ये distance formula से ये 1 आ गया. अब मॉड्यूलस को जब ओपन करते हो, यू हैव टू टेक ऑलवेज बोथ द केसेस, प्लस और माइनस. अगर अंदर अननोन है, so whenever mod x I say if it is 2, then the value of x can be plus 2 or minus 2. Hence we take always both the cases. So you get two equations. You get these two equations. अब तुम्हारे पास 1 और 2 को सॉल्व करो, एक पॉइंट मिल जाएगा. 1 और 3 को सॉल्व करो और एक पॉइंट मिल जाएगा. Yes, absolutely correct. Most of them have finished. मैं answers लिख देती हूँ. Answer is the points are 3,1. You will say the required points are 3,1 and minus 7,11 are the required points. ऐसे करके आप final answer should be nicely written like this. कुछ नहीं statement आता है तो are the required points, are the required equation. ऐसे करके end कर सकते हो. Sum number 16 और 17 family of lines पे based है, वो deleted है. So 16, 17 नहीं करना है. निर्वेद, now I again have to repeat. क्या इसमें नहीं समझा? Just write, tell me which part you didn't know, didn't get it. Okay, fine, I'll explain again. Since it's a different and important sum, I'm explaining again. अच्छा, जिसका हो गया है 16, 17 deleted है, तुम लोग 18th वाला सम ट्राई करो. जिसका हो गया है, मैं नेक्स्ट सम 18th करने वाली हूँ. अच्छा, आईआईटी बुकलेट में भी है ये सम. लास्ट पार्ट अच्छा मैं बताती हूँ. सी पॉइंट लाइज ऑन दिस, तो इट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई द इक्वेशन. तो ये ए बी तुम एक्स के जगह ए, वाई के जगह बी सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट वन इक्वेशन, कीप इट असाइड. ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है. डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट. तो अभी हमने लास्ट क्लास अगर तूने देखा होगा, वी हैव फाउंड डिस्टेंस फॉर्मूला. तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही मैंने लगाया है, पर यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड नहीं करना है, गिवन है. बट ये जो पॉइंट्स है वो अननोन है, तो वो x1 y1 जो गिवन है वो a b है यहाँ पे. तो I substituted here instead of x and y you have to replace a b and distance you will write 1. मॉड जब भी ओपन करते हैं you have to take plus or minus 1. क्यों? क्योंकि अगर मॉड x डेफिनेशन है तुमने किया हुआ है, x की वैल्यू -1 हो सकती है या 1 होती है, तो आउटपुट 1 आता है. तो hence the possibility is plus or minus 1. Therefore here also we take मॉड ओपन करते हैं तो plus or minus 1. So ये 5 शिफ्ट किया, you get 2 equations. So total now you have 3 equations. तो फर्स्ट और सेकंड I've given the numbering. Solve that. फर्स्ट और थर्ड solve that. क्योंकि पॉइंट्स पूछे, डेफिनेटली मॉड है तो तुम्हें 3 इक्वेशंस मिलेगी एंड यू सॉल्व इट. यस, परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला है. एवरी टाइम फॉर्मूला मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो. चलो सम नंबर 18 करते हैं. Whenever डिस्टेंस भी सिर्फ बोला है, इट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला है. यहाँ पे कभी भी काफी बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मेंशन है, बट डिस्टेंस भी बोला है तो तुम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कंसीडर करोगे और वही वाला फॉर्मूला लगाओगे. ओके, तो क्लैरिटी कभी कभी नहीं होती है टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में. क्वेश्चन इज a 4,3, b 0,0 and c 2,3 are the vertices of triangle ABC. Then find the equation of the bisector of angle BAC. फिलहाल तो ओरिजिन अगर ये B है, ये A है, ये C है, this is 0,0, this is 2,3, this is 4,3.
तुम्हें किसका इक्वेशन फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर बीएसी, इसको डी कर देते हैं पॉइंट। ये एंगल बाइसेक्टर है, हमारे पास इतना ही है, ये एंगल बाइसेक्टर है। यू हैव टू फाइंड इक्वेशन बीडी, सॉरी एडी, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, डू यू रिमेम्बर स्टूडेंट, स्कूल में तुमने एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी किया था? बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ये है ना, देख लेना, या मैं अभी बताती हूँ व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। इफ द लाइन is a given line is an angle bisector, then the ratio, मतलब AB upon AC is equal to BD upon DC। AB से स्टार्ट किया इसलिए मुझे BD लिखना पड़ेगा उसके सामने, BD upon DC। I repeat, what is angle bisector property? नहीं, D midpoint नहीं होगा, D midpoint नहीं होगा, D won't be the midpoint। अगर वो मीडियन होता है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो D midpoint होता है। D is not a midpoint. This is an angle bisector. So students, D is not a midpoint. Remember, median और perpendicular bisector होता है ना, तो वो midpoint हो जाता है और फिर sum easy हो जाता है। Because this is angle bisector, you have to make use of this angle bisector property. What that property says, जहाँ पे वो bisect करता है वहां से start करना है, एंगल ए को bisect कर रहा है तो तुम्हें उसके sides लेने, AB upon AC is equal to BD upon DC। So this is the angle bisector। Yes, similar triangle बनेगा और रेशियो भी ले सकते हो, ऐसे वर्क कर सकते हो। बट यहाँ पे सिमिलर, ये एंगल इक्वल है, और कौन सा एंगल लोगे? और कौन सा एंगल आएगा तुम्हारा अगर ये ट्राइंगल ले? बट यस, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और ये सब तुम्हें 10th में ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत था, तो राइट नाउ आई डोंट हैव टाइम कि ये पूरा एक्सप्लेन करे। इसका तुम देख सकते हो सर्च करके कि ये कैसे आया, इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। राइट नाउ जस्ट रिमेंबर दिस इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो एबी का डिस्टेंस तुम लोग फाइंड कर सकते हो। सो फाइंड लेंथ एबी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड एसी का भी डिस्टेंस, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स है, मुझे डिस्टेंस फाइंड करके बताओ। हेंस वी विल गेट बीडी और डीसी का रेशियो, और वो रेशियो मिल गया। सो डी इज नॉट अ मिड पॉइंट, डी डिवाइड्स बीसी इन सम रेशियो। और फिर सेक्शन फॉर्मूला जो तुमने अगेन स्कूल में किया है, वो रेशियो से हमें डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। वंस यू गेट डी का कोऑर्डिनेट, वी आर डन, वी विल गेट दैट इक्वेशन। यहाँ पे 90 डिग्री भी कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एंगल बाइसेक्टर है, ये 90 डिग्री नहीं है, नहीं दिया हुआ है। यस, दिस इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी बोलो या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलो। सबसे पहले मुझे इसका लेंथ बोलो, लेंथ ए बी क्या मिला तुम लोग को? यस, लेंथ ए बी 5 और एक 2, वेरी गुड। हाँ, 5 और 2 मिलता है, ये 5 मिला और लेंथ ए सी 2 मिला ना, करेक्ट है। सो बी डी इज टू डी सी इज रेशियो 5:2। सो अगेन, हाँ यस, 2 पॉइंट फॉर्म से हमें इक्वेशन निकालना है, करेक्ट। ए और डी है, कभी भी हमारे पास ये पॉइंट होना चाहिए तो ही तुम कुछ निकाल सकते हो। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मिड पॉइंट हो जाता है, मीडियन में मिड पॉइंट हो जाता है, उसमें भी स्लोप हो जाता है, ऑल्टीट्यूड में इजी हो जाता है क्योंकि स्लोप मिलता है तुम लोग को, परपेंडिकुलर कंडीशन है। बट यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ एंगल बाइसेक्टर की कंडीशन है, तो ऐसा रेशियो मिलेगा। नाउ यू विल राइट डी डिवाइड्स बीसी इन रेशियो 5:2। डू यू रिमेम्बर ये वाला फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, विच फॉर्मूला? डी विल बी, मैं पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ, एम एक्स, रिमेम्बर एम एक्स प्लस एन वाई अगर पॉइंट है तो, अपॉन एम प्लस एन, ये एक्स, सॉरी x1 x2, एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन, एम y2 प्लस एन y1 अपॉन एम प्लस एन। दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला बाय इंटरनल डिविजन। तो डी पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? एम क्या है? 5, ये 5 है, और ये पॉइंट है सी, बी सी लिखा है ना मैंने, तो ये तुम्हारा x1 y1 है और ये तुम्हारा x2 y2 है, और तुम्हारा रेशियो 5:m ये है। तो m x2 मतलब 5:2 प्लस n क्या है तुम्हारा? 2 into x1 that is 0 upon m plus n that is 5 plus 2।
कॉमा y कोऑर्डिनेट अगेन y2 क्या है 3 plus 2 into 0 upon m plus n. So this way you get your coordinates और coordinate मिल गया तो definitely equation correct section form. तो point क्या मिलता है तुम्हारा 5 2 are 10 और ये भी 10, ये 1 मिल रहा है 15 और 10 क्या आ रहा है कोऑर्डिनेट, ये कुछ गड़बड़ की मैंने 10,7 7 है 10 कहाँ बोल रही हूँ सॉरी 5 2 are 10,7 और 15,7 5 plus 2 7. Once you have coordinates तुम्हारे पास पॉइंट ए है और तुम्हारे पास पॉइंट डी है तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करो या स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो स्लोप फाइंड करके इट इज राइट. यस जिसने जिसने इक्वेशन डाला है एब्सोल्युटली राइट. x minus 3y plus 5 equal to 0 तो ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए. x minus 3y plus 5 equal to 0 is the required equation. Correct. ये आंसर है ठीक है फाइनल आंसर. So after getting point, you solve it and get this equation. I'll wait. Yes, Varun, correct. अच्छा 18 के बाद हम सब नंबर 20 करेंगे. 19 तो वापस वो मिड पॉइंट वाला इजी है प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया. सम नंबर 20 इज नॉट इन दिस एक्चुअली ये क्लास 12th में है तुम्हारा इसका फॉर्मूला. तो अभी मैं सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला दे दूंगी आईआईटी में भी मे बी तुम लोग को करवाएंगे बट ये एक ही सम इन लोग ने डाल दिया है और टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला भी मेंशन नहीं है. बट दिस सेम सम इज इन क्लास 12th. जो 20th सम है ज्यादा करके वो पूछते नहीं है. इट्स बस प्रिंटेड हियर तो आई विल शो यू. बट ये सेम चीज क्लास 12th में. आई विल गिव यू द फॉर्मूला फॉर इन सेंटर. वो इन सेंटर की बात हो रही है. लेट मी एक्सप्लेन. और उसका प्रूफ है ना वो क्लास 12th में है तो आई एम नॉट शोइंग दैट प्रूफ. वो ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से ही सब आ जाता है. तो तुम लोग को मैं अभी सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगी. ये क्लास 12th में है तो अभी सिर्फ इसमें प्रिंट हो गया बट आई डोंट थिंक एग्जाम में पूछेंगे तुम. बट आईआईटी में भी बता देंगे तो मैं अभी बता देती हूँ इन सेंटर का फॉर्मूला. अगर बताया तो वेल एंड गुड. आई होप दिस इज डन नाउ. ओके इन सेंटर का फॉर्मूला अभी नहीं बताया ना. ठीक है मैं बता देती हूँ. और ये तुम्हें क्लास 12th में फॉर्मूला भी है और वो फॉर्मूला कैसे आया उसका प्रूफ भी है. पर वो क्लास 12th की वेक्टर्स के बुक में है. वेक्टर्स चैप्टर है 12th में है. पता नहीं इसमें क्यों डाल दिया है बट सिंस इट इज देयर आई विल शो यू. ओके लेट मी इरेज दिस नाउ. आई होप दिस इज डन. सबको ये आ गया होगा. 10,7 12,7. I hope this is done. Other students done. Varun और इनका हो गया है but others you want me to wait? Okay done. Good. X minus 3y plus 5 equal to 0. ठीक है फिर भी इतना रखती हूँ. Let me erase them. Okay. First you just how to memorize this formula ये बताती हूँ. Easy है. इन सेंटर का फॉर्मूला देखो. इन सेंटर मतलब क्या. मुझे ये तो बोलो where all the angle bisector meets. तो अगर ये ए बी सी है इसका एंगल बाइसेक्टर इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर दे मीट एट वन पॉइंट. इसको इन सेंटर बोलते हैं. पर अब इसको फॉर्मूला के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज इसका कोऑर्डिनेट्स के लिए ये सब तुम्हें 12th में है वेक्टर फॉर्मेट में. तो आई कैन जस्ट टेल यू कि ये डिस्टेंस है. क्योंकि तुम्हें वेक्टर नहीं है अभी हम
एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड करना है. फर्स्ट यू विल रिमेंबर क्या एंगल ए का ऑपोजिट, ये डिस्टेंस सारे लेंथ फाइंड करने होंगे. लेंथ ए बी फाइंड करना होगा, लेंथ बी सी फाइंड करना होगा, तुम्हें लेंथ ए सी फाइंड करना होगा. ठीक है, सबके लेंथ पता होने चाहिए. और अगर अभी एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, इन सेंटर में एक्स कॉमा वाई रख रही हूँ समझो. तो एक्स कोऑर्डिनेट इन सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट, तो इट विल बी, समझो ये डिस्टेंस जो भी मिला उसको मैं ए रख देती हूँ, स्मॉल ए, या तो कुछ पी रख देती हूँ. जो भी तुम्हें डिस्टेंस मिला इसको डिस्टेंस को क्यू रख देती हूँ, और इसकी जो भी वैल्यू आई वो आर रख देती हूँ. तो फॉर्मूला सेज इट इज पी टाइम्स, अगर क्योंकि यहाँ पे ए बी है, यू हैव टू टेक द अदर कोऑर्डिनेट. अगर ए बी के कोऑर्डिनेट है तो सी का कोऑर्डिनेट, अब उसको x3 लिखोगे तुम. इफ यू वांट यू कैन राइट लाइक दैट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, या इसको नाम ही मत दो. This will be length AB, and if you are taking length AB तो x कोऑर्डिनेट इसका लेना है C का. तो अभी इसको नाम देना है तुम्हें, तो कैसे लिखोगे? एक्चुअली वेक्टर्स में ऐसा है, तुम्हें जो 12th में है समझो ये वेक्टर है, तो वेक्टर में x और y अलग नहीं होता है, वो सीधा a b c है. पर राइट नाउ यू डोंट हैव वेक्टर्स, सो आई हैव टू गिव यू इन द फॉर्म ऑफ x y z. सो आई एम कीपिंग b के कोऑर्डिनेट्स, I am keeping x as this as x1 y1, b को x2 y2 और c को x3 y3. ओके, सो ab आया तो x3 आएगा, प्लस अभी bc आया, bc मतलब a is missing, तो a का x coordinate, so you have to multiply for which coordinate is missing. Now the third ac, if I am taking ac I have to write b का coordinate x2 whole divide by ये सबका addition, length ab plus length bc plus length C, AC. Actually this is not there right now, ये 12th में ही है. ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट है, सेम y कोऑर्डिनेट. राइट नाउ टेक इट एज होमवर्क, खाली फॉर्मूला लिख लो, फिर ये सब्स्टिट्यूट करके पॉइंट निकाल लेना. दिस अगेन विल बी लेंथ AB y3, सेम फॉर्मूला, जहाँ पे x3 है वहां पे y3 लिख दो, BC लिखोगे तो x2. तो रिमेम्बर जो भी मैं लेंथ ले रही हूँ उसका ऑपोजिट वर्टेक्स लेना है. So if I am taking length AB, I have to take the vertex multiplication x3. Y ले रही है तो y3. If I am taking AC, I have to take the opposite vertex. If I am taking BC, I have to take opposite vertex. Plus length AC y3, y2 और ये क्या है y1 upon sum of this. So this is in center का formula. Is this clear? ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है पर टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं दिखा मुझे कहीं पे. आई डोंट थिंक टेक्स्ट बुक हैज दिस राइट नाउ, क्योंकि ये तुम्हारा क्लास 12th में है, बट सम यहाँ पे डाल दिया है. Just you have to remember coordinates will be given. If you want to find this in center I, so you can find easily by just finding all the length of the sides, और जो भी लेंथ ले रहे हो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लेना है. तो अगर तुम ए बी ले रहे हो x3 लोगे, अगर AC ले रहे हो तो b का कोऑर्डिनेट लोगे, और अगर BC ले रहे हो तो a का कोऑर्डिनेट, और ऊपर तो उसका ही 3 m प्लस n कैसे है, सेक्शन फॉर्मूला कैसा है, सिमिलर है थोड़ा बहुत. तो इसका आंसर तुम्हें ढूंढना है. इन सेंटर 2,2 आता है. सो टेक दिस एज होमवर्क राइट नाउ, डोंट सिट एंड फाइंड, नॉट दैट इम्पोर्टेंट. अब हमने है ना सम नंबर 11 से स्टार्ट किए थे, तो थोड़े आगे के सम्स रह गए. तो लेट मी टेल यू दैट we'll do one simple sums भी you should know. 1 to 4 तो बहुत easy है. Fifth one we'll do, fifth one. Next sum जो हम कर रहे हैं that is sum number 5. यस, डिस्टेंस निकालना है फिर फॉर्मूला में पुट कर देना. करेक्ट.
विदाउट फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाएगा. यू कैन फाइंड, बट देखो अभी हमने कैसे निकाला, ठीक है. यू कैन फाइंड विदाउट फॉर्मूला ऑल्सो. अभी हमने एंगल बाइसेक्टर से प्रीवियस सम वी डिड. यस, यू कैन फाइंड विदाउट फॉर्मूला, बट एग्जाम में इतना बड़ा लेंथी हो जाएगा वापस वो सर्कमसेंटर. Of course, without formula you can find angle bisector equation. इधर d लिया था, तो we did just now previous sum 18. हमने जो 18 सम किया ना, तो तुम्हें पहले a का पूरा कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा, ad का इक्वेशन निकालोगे सेम एज 18. देन वन मोर टाइम यू हैव टू फाइंड वन मोर पॉइंट. 2 पॉइंट इनफ है. 2 इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर फाइंड करो और फिर उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. दैट वे आल्सो यू कैन फाइंड इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ओके. Yes, the same sum can be done by sum number 18, but these all are very very lengthy sums. इसलिए ज्यादा circumcenter और वो भी lengthy है, पर वो वाले easy वाले पूछते हैं. एंगल बाइसेक्टर में एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करोगे, फिर रेशियो फाइंड करोगे. एज वी डिड सम नंबर 18, डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट. हाँ, 4 मार्क्स के लिए ये आएगा तो वो बड़ा वाला कर लेना, वरना ज्यादा करके ये एमसीक्यू में ही आएगा, और या तो आएगा ही नहीं. एवरी ईयर वी डोंट आस्क दिस बिकॉज ज्यादा करके दिस कंसेप्ट 12th में वो वेक्टर्स में है ये सब, तो दैट इज द रीजन. 11th में ज्यादा सर्कम सेंटर और ऑल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर वो इंपॉर्टेंट है, बट देन टू यू शुड नो बोथ. फॉर्मूला भी याद रखो, ये भी याद रखो. 18 सम हमने ऐसे भी किया है. इफ इट इज 4 मार्क्स, डू द लेंथी मेथड. Yeah, I think that's why formula is not given. Correct. 18 सम की तरह करो, पर वो बहुत लेंथी हो जाता है, तो मैंने अभी फॉर्मूला दे दिया. Yes, you can do by sum number 18. जैसे हमने इक्वेशन निकाला वैसे ही इसका इक्वेशन निकालो और साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. Okay. So if it is 4 marks, you can do by that way. हाँ, maybe वैसे ही दे दिया. Next is exercise 5.4 का हम लोग 5th सम करते हैं. 2 sums and then I'll stop and we are done with this chapter. Next class हम नया चैप्टर कर रहे हैं, सेट्स एंड रिलेशन. सेट्स एंड रिलेशन किया हुआ है क्या? आईआईटी में हो गया है. नेक्स्ट चैप्टर विल बी सेट्स एंड रिलेशंस. इज इट डन? नो ना. ओके, तो मेरे को इसलिए पूछ रही हूँ that then I will go slow ना that time. और ऐसे भी सेट्स तो तुम लोग ने स्कूल में किया है, वैसा ही है, सिंपल है. रिलेशन थोड़ा न्यू है तुम्हारे लिए. 3x plus 4y equal to p makes a triangle of area 24 square unit with the coordinate axis. Then find the value of p. ये easy है, चलो करो सम. 3x plus 4y equal to p. Find point और area. Area of triangle will be half base into height. और substitute and get the value of p. चलो करो, ये बहुत easy है. 5th sum. Yes, p is plus or minus 24. Correct है. 6th वाला करो. Find the foot of the coordinates. Foot of the perpendicular drawn from point A. Try this also now. -2, 3 to this line. ये line दिया है 3x minus y minus 1 equal to 0. Find the foot of the perpendicular. Let this be as D. ये फाइंड करना है. Perpendicular drawn from point A -2, 3 to this line. See what you can do. हाँ, 10 minutes ही है. हम ये you don't have to rejoin. You don't have to rejoin. Okay. 6th sum, foot of the perpendicular. तो इसका इक्वेशन ऑलरेडी है. अगर तुम लोग को इक्वेशन ऑफ एडी मिल जाता है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, डी पॉइंट मिल जाएगा.
We have equation of this line. D lies on this point. If you want, वापस D का points A, B रख सकते हो. ये line perpendicular है, तो इसका जो slope है, तो इसका slope मिल जाएगा. So what I am saying is find equation DAD. A is a point और find slope, और slope भी मिल जाएगा. Slope क्या होगा? इसका reciprocal और sign change. इसका slope क्या है? Minus A by B means minus 3 upon minus 1. So 3. इसका स्लोप 3 है, तो इसका स्लोप होगा -1/3. So by slope point form you find equation AD. Also you have this equation. Simultaneously solve करो, you'll get the point. अच्छा निकाल भी लिया, करेक्ट है. वरुण राइट है, 1,2. सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर हमने कर चुके हैं. 9th वाला कर वरुण. If you have done concurrence, what do you mean by show that this is the last sum, and then we'll stop and we will finish this chapter. अच्छा डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला ही दे दिया है फुट और इमेज का, बट एग्जाम में तुम्हें अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला मत यूज करना अगर 3 मार्क के लिए आए. समटाइम्स दिस सम इज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, सो यू हैव टू शो द स्टेप फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ एडी एंड ऑल दैट. या आंसर इज 1,2 D coordinates. MCQ you can use your formula, but steps दिखाने for a 3 mark sum. अच्छा, 9th one, show that the lines are concurrent. What do you mean by concurrent? It satisfy one point, all the 3 points. तो डिटर्मिनेंट वाला भी मेथड है. एक्चुअली इधर डिटर्मिनेंट हमने किया नहीं है, पर अगर तुम लोग को आता है तो डिटर्मिनेंट को हम 0 बता सकते हैं, तो भी कॉन्करेंट बोल सकते हैं. बट यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, उसका जो आंसर आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट यू सब्स्टिट्यूट इन द थर्ड इक्वेशन. हेंस यू कैन से अगर वो थर्ड को भी सेटिस्फाई कर रहा है, द 3 लाइंस आर कॉन्करेंट. द वर्ड कॉन्करेंट का मीनिंग समझा रही. कॉन्करेंट मीन्स दे मीट एट वन पॉइंट, दे सेटिस्फाई वन पर्टिकुलर सोल्यूशन. So point of concurrence, 3 lines ऐसे हो गए, तो they are, this is called point of concurrence. तो instead of doing this way, क्योंकि point of concurrence पूछा है, solve equation 1 and 2 and substitute उसका answer in third equation. It satisfies, so you will say therefore 3 lines are concurrent. Therefore all 3 lines are concurrent. तो ये सारे steps बताने. And their point of concurrence is the point of intersection what you have found. तो वो भी लिखना है. Yes, point of concurrence 5,5 आता है. So we are done with this chapter. Family of lines खाली इसमें deleted है, तो खाली वो 2 सम नंबर मैंने बताए. ऐसे वाले u plus kv वो वाला जो concept है वो नहीं है. So that we didn't do it. Next class we'll do sets and relation. Any doubt? So you can ask me. We have 5 minutes, 5 to 6 minutes. Those who have finished can leave. जिसका हो गया है they can leave. Lecture is over. Yeah. Bye. You all can leave. Those who have finished.
others have any doubt, कोई भी sum में which we did today, if you have doubt, you can ask. If no doubt, then I'll end the meeting. Any doubt, students? Yes, those who have finished can leave. जिसका ये sum complete हो गया है can leave. You all can complete the sum. I think no doubt. So, bye. Take care. I'll end the meeting.